Hello dear students, in last lecture we have studied section formula for internal division and external division. Then we have studied some formulae related to the section formula. Now we are going to apply these formula on the examples. We'll start from question number 1. Find the position vector of point R which divides the line segment joining the points P and Q whose position vectors are 2i cap minus j cap plus 3k cap and minus 5i cap plus 4j cap minus 5k cap in the ratio 3:2 internally and externally. Means when point R divides internally this segment PQ, then what are the coordinates of point R, and if it divides externally, then what are the position, what is the position vector of point R. Now given that P vector is equal to 2i cap minus j cap plus 3k cap and Q vector is equal to minus 5i cap plus 2j cap minus 5k cap. Number 1, if point R divides segment PQ internally in the ratio 3:2, therefore we can say that R vector is equal to 3 into Q vector plus 2 into P vector divided by 3 plus 2. Using section formula for internal division, means value of m is 3, value of n is 2, then we can apply like this. Substitute the values here. Therefore R vector is equal to 3 into Q cap is minus 5i cap plus 2j cap minus 5k cap plus 2 into this P vector is 2i cap minus j cap plus 3k cap divided by 3 plus 2 is nothing but 5. Therefore R vector is equal to, multiply this bracket by 3, minus 15i cap plus 6j cap minus 15k cap plus 4i cap minus 2j cap and plus 6k cap divided by 5. Therefore we have R vector is equal to minus 15 plus 4 is minus 11i cap plus 4j cap minus 9k cap divided by 5. We can keep it as it is, or we can write therefore R vector is equal to minus 11 by 5 I cap plus 4 by 5 j cap minus 9 by 5 k cap. As we are going to find position vector, this is your final answer of the first sub question. Means when point R divides segment PQ internally in the ratio 3:2, then R vector is nothing but this one. Now second one, if point R divides segment PQ externally in the ratio 3:2, then R vector is nothing but 3q vector minus 2q vector divided by 3 minus 2. Therefore R vector is equal to 3 into bracket minus 5i cap plus 2j cap minus 5k cap minus 2 into bracket this 2i cap minus j cap plus 3k cap. Now multiply it, divided by 1. There is no need to write that one. Therefore R vector is equal to minus 15i cap plus 6j cap minus 15k cap minus 4i cap plus 2j cap and minus 6k cap. Therefore R vector becomes minus 19i cap
plus 8j cap minus 21k cap. This is your final position vector of the point R, where R divides segment PQ externally in the ratio 3:2. In this way we can find these answers. Question may be asked for 2 marks in your board exam. Got it? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. Now look at for question number 2. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points A and B internally in the ratio 1:3 and externally in the ratio 1:3. The same question is there related to question number 1. Here we'll consider let A vector and B vector be position vectors of points A and B respectively. Therefore, we can say that A vector is equal to 2i cap minus 6j cap plus 8k cap, and B vector is equal to minus I cap plus 3j cap minus 4k cap. Now, first of all, we'll consider let P with position vector P vector be the point which divides segment AB internally in the ratio 1:3. Therefore, we can say that P vector is equal to, this P vector is equal to B vector plus 3A vector divided by 1 plus 3. Now substitute the value of B vector and A vector here. B vector is minus I plus 3j minus 4k plus 3A vector is, multiply directly it by 3. It is 6i cap minus 18j cap plus 24k cap divided by 1 plus 3 is 4. Now collect them together. P vector is equal to, this is nothing but minus I plus 6i is 5i cap plus 3j minus 18j is minus 15j, and minus 4k plus 24k is plus 20k divided by 4. Therefore, P vector is written as 5 by 4 I cap minus 15 by 4 j cap and plus 5k cap. And therefore, we can say that this P has coordinates 5 by 4, comma minus 15 by 4, comma 5. These are the coordinates of point P. And secondly, consider let Q with position vector Q vector be the point which divides segment AB externally in the ratio 1:3. Therefore, we have Q vector is equal to B vector minus 3A vector divided by 1 minus 3. Therefore, Q vector is equal to, B vector is minus I cap plus 3j cap minus 4k cap minus 3 से मल्टीप्लाई करो इसको, माइनस 3 से माइनस 6i cap minus into minus plus 18j cap and minus into plus minus 24k cap divided by 1 minus 3 is minus 2. That is equal to minus 7i cap plus 21j cap and minus 28k cap divided by minus 2. Therefore, Q vector can be written as 7 by 2 I cap minus 21 by 2 j cap and plus 14k cap. And therefore, Q has coordinates
7/2, comma minus 21/2, comma 40. Please check your answer. Okay, these are the coordinates of point P and Q which divides segment AB internally and externally. Okay, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. Look at for question number 3. It is very easy one. Find the position vector of midpoint M joining the points L and N respectively. Vector form use करते हैं rather using the midpoint formula for coordinates directly, क्योंकि ये वेक्टर इस चैप्टर का क्वेश्चन है इसलिए वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे. लेट L vector, M vector and N vector be the position vectors of points L, M and N respectively. Therefore we have L vector is equal to 7i cap minus 6j cap plus 12k cap and N vector is equal to 5i cap plus 4j cap minus 2k cap. Now M is a midpoint, as M is midpoint of Ln. We can say that M vector is equal to L vector plus N vector divided by 2 using midpoint formula. और अब हम सिर्फ इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. 7i cap minus 6j cap plus 12k cap. These are very easy examples. Plus 5i cap plus 4j cap minus 2k cap divided by 2. That is 12i cap minus 2j cap plus 10k cap divided by 2. Divided by 2 we have M vector is equal to 6i cap minus j cap plus 5k cap. And we have to find the position vector, and it is the position vector. This is the final answer. There is no need to find coordinates of that point. Okay, this is the position vector of point M, midpoint M. That is 6i cap minus j cap plus 5k cap. You check these answers. Now next question number 4. It is a particular type of example. If the points A 30P, B minus 1Q3 and C minus 3,3,0 are collinear, then find the ratio in which the point C divides the line segment AB. Point C AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो हमें फाइंड करना है. And as well as we are going to find the values of P and Q. तो पहले हम इनके पोजीशन वेक्टर्स कंसीडर करेंगे. Let A vector, B vector, C vector be position vectors of points A, B, C respectively. फिर ये पोजीशन वेक्टर लिखेंगे. Therefore A vector is equal to 3i cap plus pk cap. B vector is equal to minus I cap plus qj cap plus 3k cap. And C vector is equal to minus 3i cap plus 3j cap. Got it? Now we'll consider, as we have to find ratio. Remember that whenever we have to find the ratio, we'll always consider that ratio as k is to 1 or lambda is to 1. k वेक्टर यहाँ यूज किया है इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम इसमें लैम्डा यूज करते हैं. सपोज विल कंसीडर लेट पॉइंट C divides segment AB in the ratio lambda is to 1. अब यहां इंटरनली या एक्सटर्नली हमें पता नहीं, इसलिए हमने डायरेक्टली लिखा कि इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1. अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो रेशियो एक्सटर्नली होगा. लैम्डा की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो रेशियो इंटरनली होगा. तो
यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, देयरफॉर वी कैन से दैट सी वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू लैम्डा इनटू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। अब इसमें सी वेक्टर की वैल्यू रखो, देयरफॉर माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस लैम्डा i कैप प्लस q लैम्डा इंटू j कैप प्लस 3 लैम्डा इंटू k कैप प्लस a वेक्टर इज प्लस 3i कैप प्लस p k कैप divided by lambda plus 1. Therefore, we can say that minus 3i cap plus 3j cap is equal to, देखिए अब i cap कलेक्ट करते हैं, दो i cap है, माइनस लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इंटू i cap, j cap एक ही है प्लस प्लस q लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 इंटू j कैप और प्लस 3 लैम्डा प्लस p अपॉन लैम्डा प्लस 1 इंटू k कैप। तो ये हमने i j k के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स हमें 3 इक्वेशंस मिलेंगे यहां पर। कंपेयर करो तो क्या मिलेगा, देखिए माइनस लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। एक इक्वेशन बना, क्यू लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू मिलेगा 3 और आखिरी 3 लैम्डा प्लस p डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे पहले। देयरफॉर माइनस लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा माइनस 3। देयरफॉर वी कैन से दैट 2 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 6। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3। लैम्डा की वैल्यू माइनस 3 आई, इसका मतलब क्या हो गया, therefore ratio lambda is to 1, it becomes minus 3 is to 1, means we can say that point C divides AB externally in ratio 3 is to 1। समझ में आ रहा है आपको? अब दूसरे दो वैल्यूज में लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ ये क्यू लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू माइनस 3 आई है, यहां पे रखते हैं, तो माइनस 3 क्यू अपॉन माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 2 इधर जाएगा, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 2। also ये 3 लैम्डा प्लस p इज इक्वल टू आता है 0, क्योंकि लैम्डा प्लस 1 उधर जाके 0 होगा। देयरफॉर p इज इक्वल टू आएगा 3 माइनस 3 लैम्डा, देयरफॉर p की वैल्यू आएगी माइनस 3 इंटू माइनस 3, देयरफॉर p इज इक्वल टू 9 आएगा। तो p की वैल्यू आ गई 9, q की वैल्यू आ गई 2 और एक्सटर्नल डिवीजन आ गया 3:1। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसकी मेथड पूरी याद रखिए कि हमें कैसे रेशियो कंसीडर करना है और कैसे कंपेयर करके लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और उसके साथ p और q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
तो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का सॉल्व करते हैं। Now look at for question number 5 which is very similar to question number 4. Question number 4 से एकदम सिमिलर है। यहाँ पे भी हम इनके पोजीशन वेक्टर्स पहले कंसीडर करेंगे। लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली। तो ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप। बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कंसीडर करेंगे qi कैप प्लस 8j कैप माइनस 10k कैप। सी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। कंसीडर करना है लेट point C divides segment AB in the ratio lambda is to 1. Therefore, we can say that C vector is equal to lambda into B vector plus A vector divided by lambda plus 1. तो सी वेक्टर यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर लैम्डा इंटू q इंटू i कैप प्लस 8 लैम्डा इंटू j कैप माइनस 10 लैम्डा इंटू k कैप प्लस a वेक्टर इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप divided by lambda plus 1. Therefore, minus 2i cap minus 3j cap plus k cap is equal to ये lambda q plus 3 divided by lambda plus 1 into I cap plus 8 lambda plus 2 upon lambda plus 1 into j cap plus minus 10 lambda plus p divided by lambda plus 1 into k cap. कंपेयर करो दोनों साइड्स को। ऑन कंपेयरिंग क्या होता है देखिए, लैम्बडा क्यू प्लस 3 डिवाइडेड बाय लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। इसको लिखेंगे इक्वेशन 1। फिर 8 लैम्बडा प्लस 2 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा माइनस 3। इसको लिखेंगे सेकेंड। और माइनस 10 लैम्बडा प्लस p अपॉन लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा 1। इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम सेकेंड व्हाट विल यू गेट? 8 lambda plus 2 is equal to minus 3 lambda minus 3. Therefore, we have 11 lambda is equal to minus 5. Therefore, lambda is equal to minus 5 by 11. Therefore, ratio क्या आ गया? Ratio lambda is to 1 is nothing but minus 5 by 11 is to 1. That is nothing but minus 5 is to 11. अब रेशियो निगेटिव नहीं रहता, लेकिन निगेटिव आया, इसका मतलब क्या? Therefore we can say that point C divides segment AB externally in ratio 5 is to 11. समझ में आ गया? यहां पे एक आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। जब P और Q की वैल्यू निकालनी है तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या मिलता है हमें? माइनस 10 लैम्बडा प्लस P इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस 1।
सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू लैम्बडा की -5/11 यहाँ पे, -5/11 की वजह से ये आएगा 50/11 प्लस p इज इक्वल टू -5/11 प्लस 1। तो उसको इधर शिफ्ट करेंगे तो p इज इक्वल टू आएगा ये 11 माइनस 5 6/11 minus 50/11, that is p is equal to -44/11 and therefore p is equal to आएगा -4। ये p की वैल्यू आ गई -4। अब q की वैल्यू निकालते हैं। from first what will I get? Lambda into q plus 3 is equal to -2 lambda minus 2। इसमें लैम्बडा की वैल्यू रखेंगे -5q/11 प्लस 3 इज इक्वल टू 10/11 माइनस 2। 11 से मल्टीप्लाई करो, -5q प्लस 33 इज इक्वल टू 10 माइनस 22। ठीक है, तो देयरफॉर -5q इज इक्वल टू आएगा -12 माइनस 33, -5q इज इक्वल टू आएगा -45। तो q की वैल्यू आ गई 9। q इज इक्वल टू 9। समझ में आया आपको? तो इस तरह से हम लैम्बडा, p और q के वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ लैम्बडा ऑलवेज डिनोट द रेशियो वेयर दैट पॉइंट c डिवाइड सेगमेंट AB। इसको अलग अलग मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, दूसरी भी मेथड है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स के बाद वो मेथड भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लीजिए। नाउ लुक एट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। if a 5, 1, p, b 1, q, and c 1, -2, 3 are vertices of triangle and g is the centroid, then find the values of p, q, r। देखिए सेंट्रॉइड डायरेक्टली दिया है और सेंट्रॉइड फॉर्मूला हमें पता है, इजीली वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p, q and r। here given that g r, -4/3, 1/3 is centroid of triangle ABC, where A has coordinates 5, 1, p, B has coordinates 1, q, p, and C has coordinates 1, -2, 3। तो directly using centroid formula we have x is equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3, y is equal to y1 plus y2 plus y3 upon 3, and z is equal to z1 plus z2 plus z3 upon 3. We can use vector form also. Find the position vectors of these 3 points, and position vector of g is given by g vector is equal to a vector plus b vector plus c vector upon 3। और दोनों साइड्स को कंपेयर करके भी आप p, q, r के वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन जब कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और हमें फाइंड भी कोऑर्डिनेट्स करने p, q, r के वैल्यूज निकालने हैं, तो हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे x, y, z इसको कंसीडर करेंगे, ये x1, y1, z1, x2, y2, z2 एंड x3, y3, z। तो वैल्यूज रखेंगे, r इज इक्वल टू आएगा x1 इज 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है -4/3 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू है 1 प्लस q -2 डिवाइडेड बाय 3, और z की वैल्यू है यहां पे 1/3 इज इक्वल टू z1 आएगा p प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। इनको सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू आएगा डायरेक्टली 7/3
-4/3 इज इक्वल टू आएगा q माइनस 1/3 और 1/3 इज इक्वल टू आएगा 2p प्लस 3/3। तो देयरफॉर यहां पे आएगा q माइनस 1 इज इक्वल टू -4, तो q की वैल्यू आएगी -3 और 1 इज इक्वल टू आएगा 2p प्लस 3, तो 2p इज इक्वल टू आएगा -2, तो p की वैल्यू आ गई -1। तो इस तरह से p हो गया -1, q is -3 and r is 7/3। ठीक है, इजिली वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p q r यूजिंग द सेंट्रोइड फॉर्मूला। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में फिर से हमें यूज करना है सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन दिया है द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स a एंड b आर। a का पोजीशन वेक्टर ही a और b के रिलेशन में दिया है, तो हम a का पोजीशन वेक्टर थोड़ा अलग नाम से करेंगे। जैसे हम कंसीडर करेंगे लेट p वेक्टर, q वेक्टर, r वेक्टर b पोजीशन वेक्टर्स of points A, B, C respectively. Therefore given में क्या है, given में है P वेक्टर इज इक्वल टू, P वेक्टर ये A का पोजीशन वेक्टर कंसीडर किया हमने, तो ये दिया है 6A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर, और Q वेक्टर आपको दिया है A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर, और R वेक्टर आपको फाइंड करना है। क्या गिवन है? गिवन दैट पॉइंट C विथ पोजीशन वेक्टर R वेक्टर डिवाइड्स सेगमेंट AB in ratio 3:2। तो therefore R वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 इंटू B वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर यानी Q वेक्टर, 3Q वेक्टर प्लस 2P वेक्टर डिवाइडेड बाय 3+2। तो therefore R वेक्टर इज इक्वल टू आएगा 3Q वेक्टर यानी Q वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 3A वेक्टर माइनस 9B वेक्टर प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा 12A वेक्टर प्लस 4B वेक्टर डिवाइडेड बाय 5। तो R वेक्टर इज इक्वल टू आएगा 15A वेक्टर माइनस 5B वेक्टर डिवाइडेड बाय 5। तो R वेक्टर इज इक्वल टू आएगा 3A वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो therefore पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C, position vector of point C is 3A vector minus B vector, जो आपको प्रूव करना है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे अपना क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। आप नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Now look at for question number 8. If A vector, B vector, C vector are the position vectors of points A, B, C respectively, and 5A vector minus 3B vector minus 2C vector is equal to 0, then find the ratio in which point C divides line segment BA. अब देखिए, जब A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर में आपको रिलेशन दिए हुए हैं, तो पॉइंट सी बीए को कैसे डिवाइड करता है, ये बहुत इजी है। इजी बहुत है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। अब क्या गलती और कैसे हो सकती है, ये मैं एग्जांपल समझाते समय और एक एग्जांपल एक्स्ट्रा देके समझाऊंगा। देखिए, जैसे गिवन दैट, ये बहुत इजी है, इसको सिर्फ कन्वर्ट करना है आपको। गिवन दैट 5A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर इज माइनस 2C वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो सिर्फ आप माइनस 2C वेक्टर को इधर शिफ्ट कीजिए, क्योंकि C डिवाइड से पूछा है, तो C को सेपरेट कर दीजिए। तो इसको लिखेंगे हम 5A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर
इज इक्वल टू 2c वेक्टर। अब 2 को यहां पे शिफ्ट कीजिए तो c वेक्टर इज इक्वल टू आएगा 5a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो देयरफॉर हम लिखेंगे c वेक्टर इज इक्वल टू 5a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, और डिनोमिनेटर का जो 2 है इसे हम लिखेंगे 5 माइनस 3। अब देखिए रेशो पूछा है, फाइंड द रेशो इन विच c डिवाइड सेगमेंट AB। अब यहां प्लस आया है या माइनस आया है, इस पे हम इंटरनली या एक्सटर्नली ये वर्ड यूज करने वाले हैं। जैसे यहां पे लिखेंगे हम पॉइंट c डिवाइड्स segment BA externally in the ratio। अब रेशियो लिखना है इन द रेशियो। अब रेशियो लिखते समय हमेशा याद रखो, आप आगे क्या क्या है इस पे मत जाओ। जो सेगमेंट दिए है ना, सेगमेंट BA अगर बोला है, सेगमेंट आप ऐसे रीड करते हो तो रेशियो ऐसा रीड कीजिए, डायरेक्ट लिखिए 5:3। देखिए क्योंकि हमें जो फॉर्मूला होता है m वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू q वेक्टर प्लस n इंटू p वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। यहां पे हम लिखते हैं r डिवाइड सेगमेंट PQ इंटरनली इन द रेशियो m:n। PQ इंटरनली इन द रेशियो m:n। यानी सेगमेंट जब ऐसे पढ़ते हो तो रेशियो ऐसा पढ़ो, सेगमेंट अगर ऐसे पढ़ते हो यहां पे BA की जगह पे AB होता था तो रेशियो 3:5 होता। AB अगर पढ़ना है तो इसको 3:5। समझ में आ रहा है? तो ये 3b माइनस 5a डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सेगमेंट पढ़ा करो। अब मैं और एक एग्जांपल देता हूं और उसके अलग अलग क्राइटेरिया बोलता हूं। जैसे आपको समझो दिया है यहां पर रिलेशन 7a वेक्टर माइनस 13b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब जब 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो ये कोलिनियरिटी की कंडीशन है, ये तीनों कोएफिशिएंट है, इनकी एडिशन 0 आना जरूरी है, तभी ये कोलिनियरिटी होती है, क्योंकि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। जब ऐसे रिलेशन देते हैं तो पॉइंट्स ABC आर ऑलवेज कोलिनियर पॉइंट्स। तो देखिए अब यहां पे अगर हमें निकालना है फाइंड रेशियो इन विच A डिवाइड्स BC, ये अगर निकालना है आपको A डिवाइड्स BC, तो आप सीधा सीधा B और C को उधर शिफ्ट करो। 7a वेक्टर इज इक्वल टू ये आएगा 13b वेक्टर माइनस 6c वेक्टर, और 7 को इधर शिफ्ट करके A वेक्टर इज इक्वल टू आएगा 13b वेक्टर माइनस 6c वेक्टर डिवाइडेड बाय 7 कैन बी रिटन एज 13 माइनस 6। ठीक है, तो जब BC बोला है तो इसके लिए सिर्फ रेशियो क्या लिखेंगे, एक्सटर्नली, क्योंकि माइनस आया है। एक्सटर्नली क्या आएगा, BC ऐसा पड़ा है BC, तो रेशियो ऐसा पड़ी 6:30। समझ में आ रहा है आपको? BC सेगमेंट अगर ऐसी पड़ी है तो रेशियो ऐसा उल्टा पड़ना है, यहां 6:30। अब देखिए जैसे मैंने पूछा कि फाइंड द रेशियो इन विच B divides CA, B divides CA, तो मैं इस 13b को उधर शिफ्ट करता हूं, तो 13b वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा 7a वेक्टर प्लस 6c वेक्टर। 13 को इधर शिफ्ट करेंगे तो b वेक्टर इज इक्वल टू आएगा 7a वेक्टर प्लस 6c वेक्टर डिवाइडेड बाय 13। 13 कैन बी रिटन एज 7 प्लस 6, इसको 7 प्लस 6 लिखते हैं। अब सेगमेंट क्या है, CA सेगमेंट है। CA सेगमेंट ऐसे पड़ी, रेशियो ऐसा, लेकिन ये क्या होगा इंटरनली, क्योंकि यहां पे प्लस आया है तो इंटरनली आएगा। CA ऐसा पड़ा है तो रेशियो ऐसा 7:6। ये इतना ख्याल में रखना है तो आपसे गलती नहीं होगी। गलती से भी आपका इंटरनली का एक्सटर्नली और एक्सटर्नली का इंटरनली हो गया, आंसर रॉन्ग। गलती से भी आपका 5:3 का 3:5 हो गया, आंसर रॉन्ग, क्योंकि ऑप्शन में आपको सभी आंसर रहने वाले हैं। 5:3 इंटरनली, 5:3 एक्सटर्नली, 3:5 इंटरनली, 3:5 एक्सटर्नली, चारों में से चॉइस करना है। आप एक भी गलती करते हो इसको पढ़ने में तो आप आंसर गलत लिख सकते हो।
तो इतना ख्याल रखना, जब भी आपको रेशियो लिखना है, प्लस है तो इंटरनली, माइनस है तो एक्सटर्नली। सेगमेंट जैसी पड़ी है उससे उल्टा रेशियो पढ़ो, जैसी सेगमेंट पड़ी है उससे उल्टा रेशियो पढ़ो, तो रेशियो में गलती कभी नहीं होगी। समझ में आया? तो ये इतना याद रखो। आज के लेक्चर में हम यहीं स्टॉप करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला लेक्चर डेफिनेटली केयरफुली देखिए। आज के लिए इतना ठीक है। थैंक यू।